सर स्टार्ट करिए। Hello, good morning, everyone, and welcome to this yet another exciting session, a practical session for trading by WIRC in Vikasa. Today we have a wonderful session lined up on based on huge request and on demand GST audit, practical aspects of GST audit. There have been many sessions on GST audits, but today we've got a very hands-on session, and I would like to welcome. CA Dr. Shailendra Saxena ji as a speaker for today. I also have with me the GST Guru, Kar Niti Specialist, Umesh Sharma sir, who is for us the landmark on GST, and he is here today for his opening remarks and sharing his information and little knowledge about GST. I also have recognized the presence of other regional council members in this webinar, and I welcome all of you. One small request, yesterday we had in a very epic webinar, we had a little bit of technical glitch. So I would just want to, request all the participants that please bear with that, because don't lose your focus on that small little thing. If there is a small little glitch, it will take its own time, but continue your focus, because you'll then have a perfect link of whatever is happening. You will not break out. That is most important. And given the challenges that we always face during these times, it's important to keep on innovating and keep on exploring, so that we keep adapting ourselves to, after all, we need knowledge. So the best way to do is that just stay back with patience and probably follow. So I think some or the other, the speaker will cover it again in whatever manner, and we are there, we'll do that. Having said that, welcome once again all of you. I'll request Umesh Sharma sir to please share his opening remarks. The young and dynamic Arpit Kabra, Dr. CA Shailendra Saxena sir, who is our speaker. Being a chartered accountant student, GST is one of the most important tasks in the articles, and to have the knowledge and the practical aspect of GST is a need of the hour. Now 17-18 year is already over, and we are on the verge of now closing the audit of the date have been extended, but we have to benefit ourselves in this lockdown period to gain as much of knowledge of GST. The future of a CA in indirect tax practice belongs to GST. Those students who from the day one excel in their practice will excel in, and it's a very vast area. Just being completed of GST, we all are learning in this, and if a student joins to the GST journey right now, he will go way ahead and learn lot of things and be a master in GST. This subject is a very practical subject. Every student to go through and see the forms of annual return and GST audit in their office. They should study their material of GST, which is provided by the institute, and they should apply that knowledge while doing audit. Technology is also used here. Tally, Excel mastery is need of the hour, those who want to do GST, and lot of data need to be compiled for. And yes, we all know that there are a lot of problems in this form, but form is there for 1819, and but being a CA student, you must focus on the GST audit assignment and learn as much as possible. And for today, doctor, he is a CA as well as doctor. So please, at the end, as told by Arpit. So with these few words, I open this session and I request Arpit to carry on.
Thank you, Umesh Bhaiya. Indeed, very well said about the future prospects in practice of GST. Of course, one of the biggest things that is going to come, and probably in these given times, when there's a huge loss of GST revenue due to lockdown, I think there'll be a big opportunity that we all are looking forward to. I'll request now Vikasa member Omkar Sawant to please introduce the speaker. Omkar. Yes, sir. Thank you, Arpit, sir. I'm Omkar Sawant. I'm Vikasa member. Would like to introduce today's speaker, Dr. C.A. Shailendra Saxena, sir. Sir has completed Chartered Accountancy along with Company Secretary and Cost Accountant. He has also completed PhD. He is a past chairman of Bharuch branch of WIRC of ICAI. He is also member of GST Group from Surat, formed by Indirect Taxes Committee, Institute of Chartered Accountants of India, for giving suggestions to government from financial year 16-17 to 18-19. He is a nominated member of GST Committee of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. He has more than 20 years of corporate experience for handling taxation, that is indirect tax and direct tax as well. Presently practicing chartered accountant at Bharuch. Sir has co-author of book GST Audit Manual and Annual Return and Sabka Vikas Legacy Dispute Resolution Scheme in 2019, published by Taximan, New Delhi. Sir has delivered more than 50 seminars on GST and indirect taxes organized by various forums. I would thank Dr. Shailendra Saxena sir for accepting our invitation and taking this lecture. I would also like to thank all the regional council members and Vikasa team for organizing these webinars for students and members. Thank you, sir. Thank you, Omkar. As rightly mentioned, one of the very intellectual personalities that we have today, and sir has been a trainer for even GST officers and other revenue officers as well. So I think we'll get the flavor of both the sides, what he has been training people and what it should be expected from chartered accountants, how to present themselves in front of them. With these few words, I hand over the charge to sir. Sir, please continue your session. Thank you. Thank you very much, CA Arpit Kabra sir, CA Umesh Sharma sir, and Mr. Omkar Sawant for giving me my introduction. Today's topic is practical aspect of GST audit. So this is the topic when we evaluate the past 33 months, the implementation of GST. From 1st July 2017, the GST was implemented in India. And if we see the journey, various developments by way of amendments, by way of notification, by way of circulars has been made in past 33 months. So in today's session, what I will be cover, what kind of documentation required for the GST audit and what kind of challenges or issues we have already faced for the audit during the financial year 2017-18. I will be trying to cover all these practical aspects in my presentation. So first, let me start with the section 35, subsection 5, read with rules 80, subrule 3. Every registered person who is having aggregate turnover of 5 crore, we will just using this turnover for financial year 18-19, because by issuing a notification 16/2020 central tax dated 23rd March 2020, they enhanced the turnover for GST audit from 2 crores to 5 crore. So the aggregate above the 5 crore turnover shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement duly certified in Form GSTR 9C for financial year 2018 and 19. So for 17-18, the threshold limit is above 2 crore, and for financial year 2018-19, the turnover limit is 5 crore and above. Quickly, we
go through the definition of the aggregate turnover, section 2 subsection 6 of Central Goods and Service Tax 2017. The aggregate value means all taxable supply, exempt supply, export of goods or services or both, interstate supply of person having the same permanent account number to be computed on all India basis. Taking example, if I have two factories, one factory in a Maharashtra, another factory in a Rajasthan, and my Maharashtra factory turnover is 5 crore 50 lakh rupees, and my Rajasthan factory's turnover is only 1 lakh rupees. Meaning thereby, we have to compute the aggregate turnover on all India basis on permanent account number basis. So therefore, the unit who is situated at Rajasthan will liable for GST audit, because we have to see the aggregate value of turnover on all India basis for same permanent account number. And while calculating the aggregate turnover value, we exclude the value of inward supply on which the tax is payable by the person on reverse charge basis, and central tax, state tax, union territory tax, integrated tax, and cess. So these tax will be excluded while determining the aggregate value of turnover. Quickly we see the last date of filing GSTR 9 and GSTR 9C. Refer the section 44 of CGST Act. For financial year 2018-19, the last date will be the 30th June 2020, and for financial year 2019-20, the last date will be 31st December 2020. These are the very crucial table. You have to focus very carefully. हम जब भी बात ये करते हैं कि साहब डेट एक्सटेंड हो जानी चाहिए, सो एज ए स्टूडेंट, एज ए मेंबर, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं स्टैट्यूट वाइज अगर कोई भी डेट एक्सटेंड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जो डेट है आपकी ऑडिट की, वो 30th जून को एक्सटेंड हो गई है. तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, आप देखिए इसमें फर्स्ट टेबल में आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फाइनेंशियल ईयर है 17-18, जिसकी डेट लास्ट डेट जो थी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की और ऑडिट की थी 31 दिसंबर 2019. अब आप देखिए कि डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट टाइम है ऑडिट का, क्योंकि यहाँ जो भी ऑडिट आपके जो शोकॉज नोटिस इशू करने की जो डेट है अंडर सेक्शन 73 नॉर्मल कोर्स एंड अंडर सेक्शन 74 इन केस ऑफ सपरेशन फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट के केस में. सो सेक्शन 73 में आप 3 ईयर के अंदर अंदर कोई भी शोकॉज नोटिस आप इशू कर सकते हैं, और सेक्शन 74 में 5 ईयर तक आप कोई शोकॉज नोटिस इशू कर सकते हैं. कब से? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न. सो देयरफॉर अगर हम देखेंगे ईयर 2017-18 लास्ट डेट 31/12/2019 थी, उससे 3 साल यानी कि डिपार्टमेंट के पास में 3 साल का टाइम है 31/12/2022 तक वो ऑडिट करके और आपको कोई भी शोकॉज नोटिस नॉर्मल कोर्स में इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 73, और अंडर सेक्शन 74 उनके पास 5 ईयर का सफिशिएंट टाइम है. सिमिलरली जो हम लोग रिकॉर्ड प्रिजर्व करते हैं, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, वो 72 मंथ तक आपको प्रिजर्व करना होता है. 72 मंथ कब से शुरू होंगे? फॉर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न. सो देयरफॉर जैसे जैसे हमारे अगर रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड होती है, उतना ही टाइम डिपार्टमेंट के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है, हमारे लिए भी जो रिजर्व करने का जो डॉक्यूमेंट का टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा. टेकिंग एग्जांपल 18 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 last date will be 30th June 2020. So department have a sufficient time to issue to conduct the audit as well as issue the show-cause notice under section 73 within the 3 year, that is the 30th June 2023, and for the section 74 in case of fraud, misstatement or suppression 30th June 2025. So यहाँ हमारे को एज ए स्टूडेंट और एज ए ऑडिटर ये समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज एक्सटेंड हो रही है, डिपार्टमेंट के पास उतना ही एक्सटेंड टाइम आ रहा है फॉर कंडक्टिंग और अंडरस्टैंडिंग दीज लॉ. जैसे हम कहते हैं कि सब डिपार्टमेंट को कम टाइम मिलेगा, डेट हो गई, ऐसा नहीं है. उनका टाइम जैसे जैसे एनुअल रिटर्न और ये ऑडिट की डेट एक्सटेंड हो रही है, वैसे वैसे उस डिपार्टमेंट का भी टाइम एक्सटेंड होता जा रहा है. सो ये चीज हमको बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करनी चाहिए.
Second, the consequences of filing of return after due date, section 40 subsection 2. For GSTR 9 अगर हम डिले फाइल करते हैं तो CGST में 100 रुपीज पेनल्टी है, SGST में 100 रुपीज पेनल्टी है पर डे, subject to maximum 0.25% and 0.25% for CGST as well as SGST. Similar penalty prescribed in GSTR 9C, 100 rupees for CGST, SGST, and 0.25% and 0.25% of the turnover of the state and union territory. So minimum fees is the 400 per day, agar if we club the both the form, and day in case of audit, and 1% of the state turnover or union territory turnover. Now we discuss the challenges while conducting the GST audit. आपको as a article, आप अगर कहीं पर भी कोई GST audit conduct करते हैं, for taking example financial year 2018-19, किस टाइप के challenges जो है वो आप face करेंगे. First है computation of the turnover limit. जो हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, उसमें आपको टर्नओवर जो कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू देखना है कि वो 5 करोड़ से अबव केस है या नहीं ऑडिट का. सो वो कंप्यूटेशन ऑफ द टर्नओवर है वो आपके लिए एक चैलेंज रहेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि पर रजिस्ट्रेशन पर्सन वाइज अगर एक पान नंबर में 12 रजिस्ट्रेशन है, सो 12 रजिस्ट्रेशन में आपको देखना है कि टोटल पान वाइज वो टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, तो वो सारे के सारे लोकेशन जो है वो GST ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं. सेकंड चैलेंज आपका है फ्रीक्वेंटली चेंज इन लॉ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. टिल डेट more than 675 notification already issued in the CGST and IGST, 140 circulars of GST already issued, 18 removal of difficulties order, 40 times GST rule was amended, 75 press release already been issued, 900 order of advance ruling authority, and 130 order of appellate advance ruling authority already awarded by these authority. And apart from that, the FAQ and CBIC flyers issued by the CBI for more clarity and understanding. So these are the total, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से जो गीता है आपकी, ये पूरा कंपाइलेशन है जिसके तौर पे आपको ये सारे चीज आपकी ऑडिट के जो प्रोविजंस है वो गवर्न करेंगे, और आपको व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ये सारे प्रोविजंस फॉर कंप्लायंस ऑफ all the notifications, for compliance of all the circular, for compliance of all the statute, for compliance of all the rules, आपको ये माइंड में कैप्ट रखने पड़ेंगे. Another challenge is the failure of the matching concept. आपको याद होगा जब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, GSTR 2 और GSTR 3 रिटर्न जो है वो टाइम बीइंग डेफर्ड कर दिए गए. हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्म ऑबिलिश है आज की डेट. These forms are deferred. So the recipient cannot came to know the supplier has tax, pay the tax or file the returns. Next slide में हम जब वहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट की सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जब देखेंगे, वहाँ एक कंडीशन आएगी कि आपका जो सप्लायर है उसने अपने टैक्स का पेमेंट जो है वो कर दिया है या नहीं, वो आपको इंश्योर करनी है वो कंडीशन. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो यहाँ जो चैलेंज है आपको ये इंश्योर करने का कि जो आपके क्लाइंट ने या रजिस्टर्ड पर्सन ने जो भी ITC ली है उसका पेमेंट उसके सप्लायर ने कर दिया है या नहीं. दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज, एंड इन फ्यूचर इस अलोन पॉइंट के ऊपर में वेरियस लिटिगेशन हो. डिटेल में हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में, रिलेवेंट स्लाइड में इसको हम डिस्कस करेंगे. And another challenge is without tax being paid by the supplier, ITC would not be available to recipient as per section 16 subsection 2. How can an auditor give his opinion on correctness of the ITC claim? So while during the course of audit, आपको ये ensure करना है कि जो भी SSC ने, जो भी registered person जिसका आप audit कर रहे हैं, उसने ITC जो है वो correctly availed की है नहीं की है. सो वन लिम हमने ये देखा, ये एक बिगर चैलेंज है, इसलिए हमने यहाँ पर हाईलाइट इसको किया है. देन प्रोसीजरल लैप्सेस एंड नॉन कंप्लायंसेस बाय द SSC एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. आप वेरियस ऐसे सिचुएशन से अक्रॉस होंगे
जहां आपको प्रोसीजरल लैप्स मिलेगा जगह जगह पर। जैसे टेकिंग एग्जाम्पल, आपने कोई एडवांस रिसीव्ड किया अगेंस्ट द सर्विस और आप रिसिप्ट वाउचर इशू करना भूल गए, आपने टैक्स अप्रोप्रिएटली पे कर दिया। सो ये प्रोसीजरल लैप्सेस हैं कि साहब आपने रिसिप्ट वाउचर इशू नहीं किया, आपने राइटली पेमेंट किया टैक्स का, राइटली आपने रिटर्न्स में डिस्क्लोज किया है, आपने इनवॉइस करेक्टली बनाया है, बट रिसिप्ट वाउचर इशू नहीं किया। सो ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस एंड नॉन कंप्लायंस हमको वेरी केयरफुली देखने पड़ेंगे, और एप्रोप्रिएट प्लेस पे इन ऑडिट रिपोर्ट वी हैव टू मेंशन वेरी करेक्टली in appropriate places. Another challenge is the unreconciled difference between the books and returns. जब हम देखेंगे GSTR 9C में कि जब हम जो रिकंसिलेशन बनाएंगे, फर्स्ट अगर हम देखेंगे सबसे बहुत लेमन भाषा में हमको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जितने भी रिटर्न्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम लोगों ने जो फाइल किया, उन सारे रिटर्न्स को कंपाइल करके आपका GSTR 9 एनुअल रिटर्न बनेगा। और एनुअल रिटर्न से जो आपका एनुअल रिटर्न का जो भी टर्नओवर है या आईटीसी है, उससे आपका रिकंसिलेशन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। सो यहाँ जो ऑडिट में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो भी वैल्यू है, चाहे वो आईटीसी की वैल्यू है चाहे वो टर्नओवर की वैल्यू है, उसका रिकंसिलेशन आपको GSTR 9 के साथ करने का है। अनदर इज द एरर इन अप्लाइंग द रेट फॉर टैक्स डिफरेंशियल टैक्स कलेक्टेड। जहां आप वैल्यूएशन देखेंगे कि आपका जो भी कमोडिटी है, आउटवर्ड जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, या आपका जो भी प्रोडक्ट है, या आपकी आउटवर्ड सर्विस है, उसमें करेक्टली रेट आपने लगाई है नहीं लगाई है, वो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी बाय एप्रोप्रिएट और रिलेवेंट नोटिफिकेशन। डिडक्शन नॉट एडमिसिबल, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिडक्शन एडमिसिबल है और कौन से डिडक्शन एडमिसिबल नहीं है, और वो करेक्टली जो है वो आपके डिडक्शन लिए या नहीं लिए हैं। इन एलिजिबल क्रेडिट रिवर्सल नॉट डन, वेरियस टाइम आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको पता चलेगा कि वेरियस मंथ में आपने या रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई इन एलिजिबल क्रेडिट अवेल कर लिया है और जिसका और क्रेडिट का रिवर्सल नहीं किया है, जैसे जो रिवर्सल प्रेस्क्राइब्ड है अंडर रूल 42 अंडर रूल 43। सो रेक्टिफाइड रिड्यूसिंग द क्रेडिट बैलेंस, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। Correct place of supply in both domestic and international transaction of import as well as export, especially for the services. So during the course of audit आपको ये ensure करना पड़ेगा कि जो आपके registered taxable person या जो आपके clients हैं, उन्होंने correct place of supply जो है वो determine की है या नहीं की, और accordingly जो correct tax है वो discharge किया या नहीं किया according to place of supply. Then confirm all accounting standard, auditing standard are complied or not. So as a auditor, हमको ये ensure करना है कि जितने भी relevant accounting standard prescribed by ICAI है, and जितने auditing standards हैं, वो सारे के सारे complied हुए नहीं हुए during the course of audit. Avoid the cost of interest and penalty in futures. Apart from the point out our qualifications or our observation, we have to give the suggestion so the registered person can avoid the cost of interest and penalties for their future in their future course of transaction or their future course of financial year. Now coming to the audit safeguard, जो audit safeguard है आपको कैसे ensure करना है? Audit safeguard means कैसे आपको auditor की जो liability है वो minimize रखनी है, यानी कि आप इस तरह से जो documentations वगैरह करें कि everything is in the transparent manner. So the first effective tool जो है आपका है the take a management representation letter. Whatever bona fide belief जो registered taxable person का है, आप by way of management representation letters को obtain करेंगे। क्या bona fide assumption and presumption से SSC ने टैक्स का डिस्चार्ज किया है, ITC की इस bona fide belief में लिया है, और taking a example by taking a shelter of one of the High Court judgment if SSC availed the ITC. So by way in the management representation letter we have taken a clear-cut observation or representation from the client by way of this is the bona fide belief and so citation I have availed the input tax credit. In case of any technical complications, expert view precedent court orders are to be referred while reporting the audit points. So जहाँ हम लोग हमारे ऑब्जर्वेशन जो ऑडिट रिपोर्ट्स में देंगे, वहाँ जो जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं और जो भी एक्सपर्ट व्यूज हैं
वो हम सब इनकॉर्पोरेट करेंगे एट द टाइम ऑफ क्वालिफाइंग और आवर ऑब्जर्वेशन. Documentation, all verification aspect during the audit. So during the course of audit, complete हम लोग documentation रखेंगे. हम इसको coming slide में बहुत डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप का documentation हमको maintain रखना है. If any difference in view to be reported in the audit report. और अगर आपको कोई भी लगता है कि ऐसा difference of view है आपके में और आपके SSC में या audit team में, आप उसको report करेंगे audit report में clearly. So we start the sequence of activity. First activity is the transaction. Transaction for outward supply as well as inward supply. Documents. जो भी आप GST के document prepare कर रहे हैं, like invoices, input tax credit के आपके पास inward invoices होंगे. जो documents है, जो basically बन रहे हैं, चाहे वो आपका चालान है, job work चालान है, Rule 55 का चालान है, ये सारे के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको मेंटेन करना है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां एसएससी प्राइमरी बुक्स मेंटेन करता है, सेकेंडरी बुक्स मेंटेन करता है. प्राइमरी बुक्स में जितनी आपकी परचेज रजिस्टर है, आपके सप्लाई रजिस्टर है, इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर है, आपके स्टॉक के हैं रजिस्टर. सेकेंडरी रिकॉर्ड्स में जितनी भी आपकी लेजर्स हैं, जर्नल लेजर्स वगैरह हैं, वो सारी केप्ट होंगी. पीरियडिकल रिटर्न्स जितने भी आपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, आईटीसी 04, GSTR 6, GSTR 7, जो भी आपने पीरियडिकल रिटर्न फाइल किए हैं वो सारे के सारे एग्जामिन होंगे. ये सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ आपको. फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको एग्जामिन करना है, देन डॉक्यूमेंट्स करना है, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन पीरियडिकल रिटर्न, एंड देन पीरियडिकल रिटर्न से GSTR 9 जो है एनुअल रिटर्न बनेगा. GSTR 9 एनुअल रिटर्न इज नथिंग, दिस इज द कंपाइलेशन ऑफ द योर पीरियडिकल रिटर्न्स. क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं है. जो आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं उन रिटर्न्स का यहाँ पर कंपाइलेशन है, एग्रीगेशन ऑफ डेटा है. GSTR 9C जो एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट रिपोर्ट आपकी है, जिसमें हम एनुअल रिटर्न के डाटा को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डाटा के साथ में रिकंसाइल करेंगे. और इसके दो पार्ट होंगे, रिकंसिलेशन एंड सर्टिफिकेशन, और जिसमें हम एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फर्निश करेंगे इन GSTR 9. नाउ कमिंग द GST audit. First, start the GST audit. We have to understand the meaning of the GST audit. Section 2, subsection 13. GST audit means examination of records, returns, other documents, verification of correctness of turnover declared, taxes declared, refund claimed, and ITC appealed. Assess the compliance of provision of the Act, rules, notifications, circulars. So यहाँ हम जो देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ, ये पूरे के पूरे लिम्स आ गए आपके GSTR 9C के. टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम एंड ITC अवेल्ड. ये सारे के सारे हम देखेंगे कि GSTR 9C के ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स हैं, जिसके ऊपर में जो रिकंसिलेशन है वो पूरे ये 4 पार्ट्स के ऊपर में पूरा आपका फोकस रहेगा. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी. यह हम देख रहे हैं पार्ट बी, या ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है. पार्ट 1 जो है वो उस ऑडिटर के लिए रिपोर्ट है जो GST ऑडिट भी कंडक्ट कर रहा है और साथ में स्टैट्यूटरी ऑडिट भी उसी ऑडिटर ने की है फर्स्ट पार्ट में. एंड पार्ट बी जो राइट हैंड साइड में, पार्ट B2, जहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कोई पर्सन है और GST ऑडिटर है वो आप अपॉइंट हुए. सो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग है और GST ऑडिटर अलग है तो पार्ट बी सेकंड में आपको जो रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है. और स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड GST ऑडिटर अगर कॉमन है तो पार्ट बी फर्स्ट में आपको GST की ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी है. सो हम देखेंगे यहाँ पर कि बेस्ड ऑन आवर ऑडिट we report that the said registered person has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST, CGST, SGST or UTGST Act 2017 and the rules notification made issued thereunder. और अब यहाँ क्यों डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी है, हम बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे. क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है, has not maintained the following accounts, records, document as required by the IGST, CGST, SGST or UTGST Act 2017 and rules notification made issued thereunder. So यहाँ रिपोर्ट में आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मेंशन करना है कि SSC ने कौन से रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं और कौन से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए.
नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि साहब कौन से प्रेस्क्राइब्ड रिकॉर्ड हैं जो मेंटेन किए नहीं किए, क्योंकि हमने जो पास्ट में जो देखे हैं वो तो बहुत सारी लिस्ट है। अब यहाँ अगर हम सारे रिकॉर्ड्स तो मेंशन कर नहीं सकते, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब जो है जीएसटी में वो मेंटेन जो मैंडेटरी एसएससी को करने हैं, हम नेक्स्ट में देखेंगे। बिफोर दैट, व्हाई डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी, वी विल कंटिन्यू। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 2030 जो प्रेस्क्राइब करती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, evidence that the audit was planned and performed in accordance with the essays and applicable legal and regulatory requirement. If we go to the section 35 subsection 1 of CGST Act, which prescribed that every registered person to keep and maintain the true and correct accounts and records. Now coming to the very, very crucial and important sections 35(1), which talks about maintaining of the accounts and record. After implementation of GST, एक मिथ्स टोटल एसएससी और एज वेल एज प्रैक्टिशनर जो हम लोग मेंबर्स हैं जो ऑडिट करते हैं, और पूरे एक ग्रुप में क्या मिथ्स है कि साहब अर्लियर जो लॉ था हमारा एक्साइज सर्विस टैक्स वैट, वहां बहुत सारे रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब थे और जीएसटी में ऐसे कोई रिकॉर्ड अब प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्स है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक्साइज रूल्स 2002 देखेंगे, वहां आपको RG1 रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। नाउ बहुत से लोगों की ऐसा ये धारणा है कि सब अब RG1 जो रजिस्टर है वो सब डिसकंटिन्यू हो गया, जीएसटी में जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। वहां तो एक्साइज रूल 2002 में रूल्स में प्रेस्क्राइब थे रिकॉर्ड। यहाँ देखिए आप सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 में रिकॉर्ड्स प्रेस्क्राइब है, यानी कि वहां रूल्स में अर्लियर लॉ में थे, और जो सेक्शन और स्टैट्यूट होता है वो मोर पावरफुल होता है in comparison of the rules. So यहाँ section 35 subsection 1 में prescribed है every registered person is required to keep or maintain all records. कौन कौन से रिकॉर्ड जो हमने देखा था, यहाँ देखिए आप पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जहां आपको क्वालिफाई करना हैज मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैज नॉट मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कौन कौन से आपके जो प्रेस्क्राइब्ड रिकॉर्ड है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, नंबर 1, inward and outward supply of goods or services or both, stock of goods, input tax credit availed, output tax payable and paid, and other particulars as may be prescribed under Rule 56. So यहाँ आप देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी आपको स्टॉक के रिकॉर्ड मेंटेन करने, आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर मैं ये कंपोनेंट ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं डाल दूं, तो ये मेरा RG1 रजिस्टर प्रिपेयर हो गया जो हमारा अर्लियर लॉ में मैंडेटरी था। सो यहाँ मोर फोर्स के साथ 35 में आपको प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग और ये सारे प्रेस्क्राइब्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं आपको बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन बताता हूं। सपोज कीजिए मैंने किसी गुड्स का ITC बिल्ड किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और मैंने उस ITC की जो एंट्री है वो स्टॉक रिकॉर्ड में नहीं की, इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर में नहीं की, आपको 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिला। बिकॉज अनटिल और अनलेस दीज प्रेस्क्राइब्ड रिकॉर्ड में अगर आपके जो भी गुड्स है अगर आपने उसमें एंटर नहीं किया, यू आर नॉट एंटाइटल फॉर ए सिंगल क्रेडिट। अर्लियर लॉ का जो था कि साहब गेट एंट्री है, हमने सिक्योरिटी रजिस्टर में एंट्री की है, वो यहाँ सब इररिलेवेंट। जो प्रेस्क्राइब्ड रिकॉर्ड है सेक्शन 35(1), यू हैव टू मेंटेन मैंडेटरीली। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रजिस्टर है उसमें एंट्री है, और स्टॉक में, इनवर्ड स्टॉक में, यहाँ मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में ऑल दी स्टॉक इंक्लूड है, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल स्टॉक, पैकिंग मटेरियल स्टॉक एंड इन्वेंटरी स्टॉक। सो ऑल काइंड ऑफ स्टॉक का जो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और ये रिकॉर्ड मंथली बेसिस पे आपको मेंटेन करना है। जैसे ही आपका मंथ क्लोज हुआ, किसी रिटर्न आपने फाइल किया, ये सारे के सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने के हैं, और नहीं मेंटेन करेंगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रूल 57 जो गवर्न होता है, जो हमने देखा था, वो होता है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड
can be kept in electronic form in such manner as may be prescribed. Majority of cases में electronic record, आप जो भी record है वो electronic form में ही आप maintain करना है. So अगर आपने electronic record maintain किया है या आप maintain कर रहे हैं, वो record should be accessible at every related place of business. यानी every related place of business means principal place of business as well as additional place of business. So ये सारे रिकॉर्ड आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करने हैं. और ये रिकॉर्ड जो अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इनका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप होना चाहिए. इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रक्शन और एक्सीडेंट, यू आर इन पोजिशन टू रिकवर दीज रिकॉर्ड. सो इन केस ऑफ अगर कोई एक्सीडेंट होता है और ये रिकॉर्ड डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप उसका बैकअप से वो रिकॉर्ड आप रिकवर कर सकें. प्रोडक्शन ऑन डिमांड, यानी अगर कोई ऑफिसर ये रिकॉर्ड आपसे डिमांड करता है, आपको ये रिकॉर्ड ऑन डिमांड आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो आपका जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए. एंड एक्सप्लेनेशन फॉर कोड यूज, जो आप कोड यूज ले रहे हैं उसके बारे में आपका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सपोज कीजिए कि अप्रैल 2019 का मैंने एक GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करके मैंने पूरा जो है अप्रैल 2020 को मैंने कंप्लीट कर दिया. अब इससे जो रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स हैं आपके, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, स्टॉक, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स पेबल एंड अदर पर्टिकुलर, ये सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे फ्रीज करने पड़ेंगे. क्योंकि यहाँ ये रूल्स क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, accessible at every related place of business, proper electronic backup, production on demand, पासवर्ड एंड एक्सप्लेनेशन फॉर कोड यूज्ड. अगर कोई ऑफिसर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है, आपको वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो भी रिकॉर्ड है वो आपको शो करने पड़ेगा. यहाँ पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जो है 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. जो हमने अर्लियर में स्टार्टिंग में जो टेबल देखी थी, यानी कि जो भी फर्निशिंग ऑफ हमारा एनुअल रिटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 30 जून 2020 हमारी लास्ट डेट एनुअल रिटर्न की, उससे 72 मंथ तक आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिकॉर्ड रिटेन करने हैं, प्रिजर्व करने हैं, मेंटेन करना है. विद इन 72 मंथ आपको जो है वो मेंटेन करने रखें. और आपको जो है ड्यू डेट से फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एज ए ऑडिटर आप जो मास्टर फाइल बनाएंगे बिफोर कमेंसिंग द जीएसटी ऑडिट, इसको हम परमानेंट ऑडिट फाइल कहते हैं जर्नल लेमन वर्डिंग में. फर्स्ट जो हम लेंगे डॉक्यूमेंट्स वो है अपॉइंटमेंट ऑब्लिक एंगेजमेंट लेटर backed by board resolution in case of corporate entity SA 210. यानी फर्स्ट आपको अपॉइंटमेंट और एंगेजमेंट लेटर जो है वो ऑब्टेन करना है आपके क्लाइंट से. एक्सेप्टेंस लेटर बाय द ऑडिटर SA 210 में आपको एक्सेप्टेंस देनी है उस ऑडिट की. कम्युनिकेशन विद प्रीवियस जीएसटी ऑडिटर जो हम एनओसी कहते हैं SA 210 में. यहाँ अगर हम 2018-19 के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, हमको फॉर जो ऑडिटर जिसने 2017-18 की ऑडिट की है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद प्रीवियस ऑडिटर और उसे एनओसी लेनी पड़ेगी. देन कॉपी ऑफ साइंड फाइनेंशियल एंड एनुअल रिपोर्ट विद ऑल शेड्यूल एंड नोट्स, ये आपको ऑडिट के लिए मास्टर फाइल में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड फॉर्म 26AS, ये सारे के सारे आपको जो है वो परमानेंट मास्टर फाइल के लिए यूज में आपके आएंगे. एंड कॉपी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी, अगर कोई कॉस्ट ऑडिट, अगर वो एंटिटी गवर्न होती है आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी. स्टेट वाइज ट्रायल बैलेंस इन केस ऑफ मल्टी जीएसटी एंड क्लाइंट्स विद कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस. यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके क्लाइंट या ऑडिटी है उसने ये जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है वो आपको सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड किया या एक्सेल में प्रोवाइड किया. अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस जो आपके मल्टी लोकेशन है या जीएसटी वाइज है ये सिस्टम से मिलते हैं तो ठीक है. अदरवाइज आपको एज ए ऑब्जर्वेशन जब आप ऑडिट रिपोर्ट, जब आप ऑडिट पॉइंट क्वालिफाई करेंगे वहां क्लियरली मेंशन करेंगे कि जो बाइफर्केशन है इंस्टीड ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेल में हमको प्रोवाइड करके दिया गया. नेक्स्ट इज द फॉर द मास्टर फाइल कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. यहाँ से जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो आपको परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था REC 06 में,
साथ में आपको विद लिस्ट ऑफ कोर और नॉन कोर अमेंडमेंट टू जीएसटी अंडरटेकन एंड डॉक्यूमेंट इन रिलेशन देयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जितने भी एसएससी ने और ऑडिटी ने जो कोर और नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट की है वो सारे के सारे आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे कि कितने डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं इसमें, कितने ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज हुए हैं, कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है, वो सारे के सारे आपको यहाँ ये कोर और नॉन कोर अमेंडमेंट से पता चलेगा। कॉपी ऑफ पान, कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ये आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। नोट ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये आपको एक टू अंडरस्टैंड द methodology of business for entity and its environment, जो कि ऐसे 315 में prescribed भी है। List of goods or services supplied by the client along with the HSN and SAC code and GST rate charged by it, ये आपको पूरी की पूरी लिस्ट लेनी पड़ेगी। Software used by the auditee for accounting data, that is Tally और SAP, auditor login आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है ऑडिटी के जो है अकाउंट्स, आप जो भी अकाउंट्स और रिकॉर्ड है वो आप ऑडिटर लॉगिन से आप उसको रिव्यू कर सकें। नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो आपको जो है रिव्यू करने पड़ेंगे, फॉर मास्टर फाइल पर्पज आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉयज एंड अदर रिलेटेड पार्टीज, सैंपल फॉर्मेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको हर तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने अर्लियर स्लाइड में देखे थे, जीएसटी के जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक ए टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान अंडर रूल 55, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, इन सबके स्पेसिमेन फॉर्मेट आपको जो है हर मंथ के इलस्ट्रेटिव वो आपको करंट ऑडिट फाइल के लिए ऑब्टेन करने पड़ेंगे। सैंपल परचेज इनवॉइस फॉर मेजर इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, वो आपको लेने पड़ेंगे, जितने परचेज, ऑल काइंड ऑफ परचेज, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे गुड्स से रिलेटेड है, चाहे इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आपको सैंपल परचेज इनवॉइसेस मंथ वाइज आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर एंड आउटपुट सप्लाई रजिस्टर, वो आपको लेना पड़ेगा। कॉपी ऑफ GSTR 3B, GSTR 1 एंड अदर GSTR रिटर्न्स, रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 1 वर्सेस ई-वे बिल डाटा पर्टेनिंग टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ई-वे बिल जो है वो मैंडेटरी हो गया था ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया। सो यहाँ आपको GSTR 1 के साथ में ई-वे बिल आउटवर्ड सप्लाई का जो डाटा है वो रिकंसिलेशन करके देखना पड़ेगा कि क्या उस डाटा में कोई डिफरेंस है या वो डाटा टैली है या नहीं है। फॉर दैट पर्पज आपको GSTR 1 और ई-वे बिल का जो आउटवर्ड जो आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स का जो डाटा है वो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, copy of invoice for major purchase and sale of capital goods, fixed asset schedule, extract of fixed asset register, यहाँ आपको ये पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे। In case of multiple GST under same company, bifurcation of receipt and expenses of GST wise, including miscellaneous income, यहाँ आपको GST wise miscellaneous income का bifurcation करना पड़ेगा, ताकि according to bifurcation उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी और आपको ये इंश्योर करना है कि उस एंटिटी ने जो सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी है सेम पान नंबर में, उसने करेक्टली उस टैक्स को डिस्चार्ज किया है या नहीं किया। देन वर्किंग ऑफ रूल 42 और 43, रिवर्सल ऑफ ITC, bifurcation of block credit and aging of payable for the reversal of ITC if invoice payment not made within the 180 days from the date of invoice। रूल 37 जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड्स एज वेल एज GST, उस केस में आपको जो आपने क्रेडिट लिया ITC वो रिवर्स करना पड़ेगा आफ्टर 180 डेज, और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे गुड्स की वैल्यू और टैक्स का, देन आप रिक्रेडिट उस केस में ले सकते हैं। देन GSTR 3B वर्सेस GSTR 2A और ITC एज पर बुक्स, ये रिकंसिलेशन आपको टू द एक्सटेंट पॉसिबल मेंटेन करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे एक लाइन में टैली है या नहीं, कि जो आपकी परचेज है GSTR 3B की जिसपे इनवर्ड सप्लाई जिसपे आपने ITC क्लेम किया है, और जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है वही इनवर्ड सप्लाई, और ITC एज पर योर बुक्स जो आपका ITC रजिस्टर है, उस इन तीनों में जो है वो पूरा के पूरा रिकंसिलेशन होकर ये सारे के सारे सेम जो है वो वैल्यू होनी चाहिए,
और अगर कोई डिफरेंस है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास में होना चाहिए। List of ITC for financial year 2018-19 claimed in GSTR 3B for financial year 2019-20. तो यहाँ for the financial year 2018-19 आपको 30th सितंबर 2019 तक आप उसकी जो है वो क्रेडिट ले सकते थे। तो यहाँ हमको लिस्ट लेनी है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी ITC पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है और जिसको आपने 30th सितंबर 2019 तक उसको क्लेम किया है, वो लिस्ट एक आपको सेपरेट लेनी पड़ेगी। देन इंपॉर्टेंट सेल्स एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जितने भी आपके परचेज ऑर्डर है, जितने वर्क्स ऑर्डर है, वो सारे के सारे, और एग्रीमेंट टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या जीएसटी के क्लॉजेस हैं और वो कौन सा केस है आपका, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का केस है, मिक्स्ड सप्लाई का केस है, कंपोजिट सप्लाई का केस है, वो आपको फॉर एग्जामिन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको सारे के सारे एग्जामिन करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई एंड सैंपल बिल ऑफ सप्लाई, या अगर कोई भी आपकी अगर एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई है उसके आपने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया है, वो सारे के सारे आपको जो है इलस्ट्रेटिव जो है वो आपको बिल ऑफ सप्लाई ऑब्टेन करने पड़ेंगे। देन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो हमने अर्लियर में डिस्कस किया था ऑन हाउ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन सेटिस्फाइड टैक्स ऑन द वैल्यूएशन रूल और ऑल शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन, यानी कि जो शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन है विदाउट कंसिडरेशन, और जिसमें एक ट्रांजेक्शन है कि आपने कोई भी रिलेटेड पार्टीज, जिसमें कोई भी रिलेटेड पर्सन इंक्लूडिंग एम्प्लॉय के साथ में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो वो वैल्यूएशन जो आपका 28 है, रूल 28 में गवर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपने जो है वो वैल्यू है उसके ऊपर में जीएसटी डिस्चार्ज किया है। स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको ये एग्जामिन करना है कि इज देयर इन एनी कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई और इंडिपेंडेंट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में एक से ज्यादा दो चीजों की सप्लाई होगी, एक सप्लाई आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होगी और बोथ सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई आर नेचुरली बंडल्ड। सो इन दैट केस में आपका जो है वो जीएसटी जो है प्रिंसिपल सप्लाई की जो भी रेट है उसके साथ में आपको वो रेट से आपको जीएसटी डिस्चार्ज करनी है। मिक्स्ड सप्लाई के केस में दो इंडिपेंडेंट सप्लाई है, नॉट नेचुरली बंडल्ड, और कैपेबल है इंडिपेंडेंटली वो गुड्स सप्लाई होने के लिए। फॉर टेकिंग एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए मैंने एक ग्लास बॉटल में चॉकलेट्स को डालकर और मैंने वो सप्लाई कर दिया, चॉकलेट्स की जो जीएसटी रेट है वो 28% है, ग्लास बॉटल्स की जो रेट है या ग्लास जार की जो रेट है वो 18% है। तो इस केस में जो मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट रेट चॉकलेट की है उस रेट पे आपको जो है जीएसटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। और इंडिपेंडेंट सप्लाई में केवल जो भी आपकी जो नोटिफिकेशन में आपकी रेट प्रेस्क्राइब्ड है उसमें आपको जो भी रेट गवर्न होती है उसमें आपको जीएसटी डिस्चार्ज आपको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इन्वॉल्व इन कैपिटल गुड्स परचेज, यहाँ आपको बहुत केयरफुली ये देखना है कि आपका जो आईटीसी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट सर्विसेज एंड थर्ड कैपिटल गुड्स। यहाँ कैपिटल गुड्स अगर हम देखें उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कैपिटल गुड्स की, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में कैपिटल गुड्स डिफाइन है। ऑर्डिनरी लेमैन में हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट एवर यू कैपिटलाइज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ए कैपिटल एसेट। सो जो आपने एसेट को बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया वो आपकी कैपिटल एसेट। टेकिंग एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए मैंने एक प्लांट परचेज किया, क्योंकि आपको आईटीसी मिलेगी क्योंकि आप अगर इंटेंडेड टू बी यूज्ड है और फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर आप कोई भी इनपुट और कैपिटल गुड्स आप अगर प्रोक्योर करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब वो आपका कैपिटल गुड्स यूज होगा तभी आपको आईटीसी अवेल्ड आपको करनी है, आपको इमीडिएटली आईटीसी अवेल्ड करनी है। लेकिन ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक प्लांट आपने परचेज किया जो इंटेंडेड टू बी यूज्ड आफ्टर 2 ईयर, इस केस में इसकी जो आईटीसी है वो आपको कैपिटल गुड्स में लेनी पड़ेगी क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। आपने बुक्स में कैपिटलाइज, अब आज की डेट में आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटेंडेड टू बी यूज्ड है आफ्टर 2 ईयर। मीनिंग देयर भाई, इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में एटलीस्ट शो करेंगे फॉर क्लेमिंग द आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हमने ये कैपिटल एसेट को इनपुट में डिफाइन कर दिया और इसकी आईटीसी कैपिटल गुड्स में ले ली, डिपार्टमेंट में लिटिगेट द सेम। सो यहाँ बहुत केयरफुली आपको देखना है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स की आईटीसी ली है, एटलीस्ट
वो कैपिटल गुड्स और CWIP, क्योंकि CWIP जो आपका पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट जो है आप बैलेंस शीट में जो आप देखते हैं, जो आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट है CWIP उसका पार्ट होता है। तो मीनिंग दे रहा भाई कि जब हम CWIP में उस एसेट को दिखा देंगे तो वो एक तरह से फॉर GST पर्पज कैपिटलाइज होगी। अदरवाइज डिपार्टमेंट में लिटिगेट कि भैया कैपिटल गुड्स है, आपने ITC ले ली एज ए इनपुट, बट ये कैपिटल गुड्स है और आपने कैपिटलाइज नहीं किया, वी डिनाइड द ITC फॉर दैट। Next one is the classification and applicable rate notification for outward supply. यहाँ आप देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेबल रेट नोटिफिकेशन जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो वेरी केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि वो करेक्टली जो है वो रेट आपके आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज की क्लियरली क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन आपकी जो है वो रेट सही लगी है या नहीं लगी है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दो तरह से आप लोग दे सकते हैं, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, जिसका प्रोसीजर है कि अगर आपने इनवॉइस के ऊपर में वो डिस्काउंट शो कर दिया, फर्स्ट मेथड में आपको वो अलाउएबल है। सेकंड मेथड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो आप थ्रू क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, उसकी कंडीशन है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अप्रोप्रिएट प्लेस पे उसकी क्या कंडीशन है फॉर अवेलिंग द इशूइंग द पोस्ट सप्लाई क्रेडिट नोट फॉर टुवर्ड्स डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप कैप्चर करेंगे। पेमेंट मेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड जॉब वर्क से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट आपके रिकॉर्ड्स हैं, चालान है, रूल 55 के ITC 04 है, उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सब आप इसमें यहाँ स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे। कमिंग टू एक्सपोर्ट ये सारे आपके प्रेस्क्राइब है, कॉपी ऑफ LUT, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, कॉपी ऑफ IEC RMC सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ FIRCs received within the 1 year, copy of sample shipping bill, copy of RFD 01 अगर आपने कोई रिफंड का फाइल किया है, copy of refund order received if any reason for non receipt, few sample extract from IceGate website for export of goods, जो आपका IceGate की साइट है, जो आपका लॉगिन है, आपका IEC कोड से जो आप लॉगिन करते हैं, उसके डाटा के साथ में आपके GST के जो भी डाटा है उनको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। SEZ के केस में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स जो भी है, प्रूफ ऑफ सेल्ड गुड्स हैव बीन एडमिटेड इन फुल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आउटवर्ड सप्लाई अगर आपने कोई SEZ जोन में की है, वहाँ का जो एविडेंस है, जो आपके पास में एंडोर्स इनवॉइस वापस आया है, वो सब आपको डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे लिस्टेड। इनवर्ड गुड्स फ्रॉम SEZ है, जो आपने एज ए डोमेस्टिक और DTA में आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है बाई आफ्टर पेइंग द IGST, वो सारे के सारे आपको कैप्चर करने पड़ेंगे एज ए स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन। IGST पेड चालान, रिकंसिलेशन ऑफ इंपोर्ट डाटा विद IceGate डाटा। यहाँ जहाँ SSSC और ODD जहाँ पर इंपोर्ट ऑफ डाटा का हाई वॉल्यूम है, वहाँ एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आपको IceGate की जो साइट है आपकी, उस साइट से डाटा इंपोर्ट करके और आपने जितने भी बिल ऑफ एंट्री का जो क्रेडिट लिया उसको पीरियडिकल आपको रिकंसाइल करके देखना चाहिए कि सारी के सारी बिल ऑफ एंट्रीज का जो भी ITC है वो आपने लिया है या नहीं लिया है। कॉपी ऑफ सैंपल बिल ऑफ एंट्रीज जो है वो आपको कैप्चर करनी पड़ेगी। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में टैक्स आपको ये देखना डॉक्यूमेंटेशन में कि वेदर द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द बायर और पेड इन ओवन अकाउंट्स बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर और डीम्ड एक्सपोर्टर, किसने who has claimed the refund, ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ डीम्ड एक्सपोर्ट में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो रिसिपिएंट है उसके पास में भी ऑप्शन है कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है, और जो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है जो भी डीम्ड एक्सपोर्ट में, उसके पास भी ऑप्शन है कि वो आपका GST का पेमेंट करके और खुद रिफंड क्लेम कर सकता है। प्रूफ फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट जो भी है अप्रोप्रिएट आपके एंडोर्स कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, इनवॉइस की कॉपी जो एंडोर्स की हुई है, वो सारी की सारी आपको एज ए स्पेशल डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी है। और इन केस ऑफ EOU जो फॉर्म A EOU जो फाइल करता है अपने जुडिक्शन में, सामने वाले जो सप्लायर है उसके जुडिक्शन में, और सप्लायर को जो कॉपी फॉर्म A की जो फर्निश करनी पड़ती है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली है या नहीं, आपको स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। और इन केस ऑफ लिटिगेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको ये और एग्जामिन करना है कि एनी लिटिगेशन in GST regime issuing any notices or any inspection visit carried out by the GST officer, because during the course of financial year 18-19 various notices issued by the GST authority central as well as state। तो हमको ये एग्जामिन करना है कि कौन कौन से मैटर पे GST authorities ने
नोटिस इशू किए थे और हमने उसका क्या क्या कंप्लाइंस उसका एसएससी ने किया है वो सारे रिव्यू करके हमको देखना है कि अप्रोप्रिएट उसका जो भी कंप्लाइंस है वो कर दिया या नहीं कर दिया। Coming to the notification, original notification of 9C 74/2018 dated 31st December 2018. यहाँ हम देखेंगे GSTR 9C जो है वो है रूल 80 सब रूल 3 से गवर्न होता है। पार्ट ए जो है वो आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, पार्ट बी जो है वो सर्टिफिकेशन। यहाँ हमने जैसा देखा कि GSTR 9C broadly segregated in the 4 limbs: gross turnover including taxable and non-taxable turnover, taxable turnover, tax liability and payments rate wise, input tax credit availment। टोटल जो GSTR 9 है 5 पार्ट्स में और कंसिस्ट इन 16 हेड्स, जिसमें GSTR 9 को पूरा के पूरा बाइफरकेट किया है। यहाँ देखेंगे पार्ट 1 to 4 टेबल है जिसमें बेसिक डिटेल है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की। पार्ट 2 में टेबल 5 to 8 में रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न है जो GSTR 9 से है। पार्ट 3 में टेबल 9 से 11 में रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड है। पार्ट 4 में जो टेबल 12 to 16 है रिकंसिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है। पार्ट 5 जो ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। यहाँ पार्ट 5 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ ऑडिटर को ये रिकमेंडेशन देनी होती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ने कौन कौन से नॉन कंप्लाइंस किए जीएसटी में। यहाँ ऑडिटर क्वांटिफाई करेगा अलोंग विद रेट और अलोंग विद टैक्स अमाउंट कि ये कंप्लाइंस किया। ऑडिटी लाइबल नहीं है इसको कंप्लाइंस करने के लिए, लेकिन एज ए ऑडिटर हमको ये कंप्लाइंस करना है और जीएसटी अथॉरिटीज के लिए। सो हम यहाँ पर यह एक रिकमेंडेशन देंगे कि ये ऐसे ऐसे लैप्सेस है या ये ऐसी एरियाज हैं जहाँ पर कि एसएससी ने जो है उसका वायलेशन किया है जीएसटी रूल का, और इसके अकॉर्डिंगली ये लाइबिलिटी आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी और रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ सिल्वर क्रेडिट जो है और इंटरेस्ट और पेनल्टी की अगर कोई लाइबिलिटी है वो हम यहाँ पर पार्ट 5 में ऑडिटर रिकमेंडेशन में मेंशन करेंगे। नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट की इशू ऑफ द जीएसटी ऑडिट। अब हम 1 by 1 इशू लेंगे, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि हम मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो सारे के सारे कवर करें। फर्स्ट जो इशू है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड एंड रिवर्स्ड सब्सिक्वेंटली आफ्टर सम टाइम्स वेदर इंटरेस्ट इज लायबल टू बी पेड फॉर सच रिवर्सल। यानी फर्स्ट हम क्वेरी समझेंगे कि एक ऐसा एसएससी है जिसने कि कोई आईटीसी को अवेल्ड कर लिया बाय मिस्टेकली और उसने उस आईटीसी को अवेल्ड करने के बाद में उस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया और सब्सिक्वेंटली उसको रिवर्स कर दिया। सो अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो हमने अवेल्ड करने से और जो रिवर्सल का जो पीरियड है उस पीरियड में कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 50 अराइज होती है या नहीं। सो यहाँ जो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि mere reflection of credit in electronic credit ledger cannot be termed as equivalent to availment of credit or utilization of credit unless it is the actually utilized for payment of tax liability at the time of filing of returns. So therefore अगर हमने सिंपली कोई भी आपकी आईटीसी को अवेल्ड कर लिया और सब्सिक्वेंटली विदाउट यूटिलाइज किए हुए उसको हमने रिवर्स कर दिया, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी सेक्शन 50 में नहीं अराइज होती है। पटना हाई कोर्ट का एक इसमें लैंडमार्क जजमेंट है कॉमर्शियल स्टील इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिविल रिट जुडिक्शन केस नंबर 2125 ऑफ 2019। यहाँ पटना हाई कोर्ट में ये केस था कि एक एसएससी ने ट्रान 1 का कोई क्रेडिट था उसको अवेल्ड कर लिया, उसको बाद में पॉइंट आउट किया अथॉरिटी ने कि ये आपका करेक्ट, आपका जो वैट का जो क्रेडिट है वो करेक्ट नहीं है, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। एसएससी ने रिवर्स कर दिया लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया था। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर में इंटरेस्ट डिमांड किया। एसएससी कॉमर्शियल स्टील इंजीनियरिंग ने रिट पिटीशन फाइल की बिफोर द पटना ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। सो पटना हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि merely अवेलमेंट of credit is not equivalent to utilization of credit, therefore no interest will be leviable under the GST. Second key issue जो है, if interstate supply has been declared as an intrastate or a vice versa and CGST and SGST paid accordingly, यानी हम सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी एक इंटरस्टेट सप्लाई थी, टेकिंग एग्जांपल गुजरात से महाराष्ट्र, और मुझे जो सीजीएसटी गुजरात से महाराष्ट्र जो मेरी सप्लाई थी मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी गुजरात का पे करना था। इंस्टेड ऑफ दैट सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ गुजरात
मैंने IGST रॉन्गली पेड कर दिया। सो यहाँ की इशू क्या है कि साहब अगर मैं करेक्ट टैक्स को भरता हूं और इनकरेक्ट टैक्स का रिफंड क्लेम करता हूं, तो जब मैं करेक्ट टैक्स को भरूंगा तो क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी? सो आवर इंटरप्रिटेशन इज, my interpretation is, person is required to pay correct tax and file refund of the tax paid wrongly. So यहाँ इस केस में हम लोग जो हमने गुजरात की CGST और SGST रॉन्गली पेड कर दी, उसका तो हम रिफंड फाइल करेंगे, और IGST है करेक्टली जो IGST है वो पे करेंगे, एंड नो इंटरेस्ट लाइबल टू बी पेड व्हेन करेक्ट IGST पेड। यहाँ सेक्शन आप देखेंगे 77 सेक्शन सबसेक्शन 2 of CGST Act clearly specify कि no interest liable to be paid in such scenario when, because यहाँ क्या है कि जो भी ऑडिट या SSC उसका कोई रॉन्ग और मिलाफाइड इंटेंशन नहीं था, ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन उसने रॉन्ग टैक्स भर दिया, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन जो भी उसका मेलाफाइड कोई भी इंटेंशन इस केस में नहीं था। तो सेक्शन इटसेल्फ में इसमें लिखा हुआ है कि जब आप करेक्ट IGST पे करेंगे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, और जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया है उसका आप रिफंड फाइल कर दीजिए। यहाँ ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन आई थी, एस साजी वर्सेज कमिश्नर SGST एंड अदर्स 2018-11 TMI 954। यहाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चेकिंग ऑफ ई-वे बिल डिपार्टमेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि SSC ने वो GST और पेनल्टी जो है वो पे करनी थी। SSC ने रॉन्गली जो है CGST SGST और IGST की जगह उसने CGST SGST पे कर दिया। डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं आपने गलत टैक्स भर दिया, आप दोबारा टैक्स का पेमेंट कीजिए। SSC जो है एस साजी ने रिट पिटीशन फाइल की ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने, एंड केरला हाई कोर्ट अलाउ द पिटीशन रिक्वेस्ट एंड हेल्ड दैट कि अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम द हेड SGST टू IGST। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन लिया कि डिपार्टमेंट से बोला कि साहब ये आपका डेबिट क्रेडिट का मामला है, आप आपस में डेबिट क्रेडिट कर लीजिए, आप काहे के लिए SSC से दोबारा टैक्स भरवा। और इसमें ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने 1 वीक का टाइम अलाउ किया डिपार्टमेंट को कि आप आपस में जो टैक्स जो है वो आप सेट ऑफ कर लीजिए। थर्ड की इशू जो है वेदर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, ये इशू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अक्रॉस द इंडिया लैक्स ऑफ नोटिसेस जो है अक्रॉस द इंडिया सारे SSC को सर्व हुए। यहाँ जो मेन क्वेश्चन है कि वेदर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ फर्स्ट हम लेमन में अंडरस्टैंड करेंगे क्या प्रॉब्लम है कि मैं मेरा GSTR 3 भी जो मैं फाइल करता हूँ और जिसकी ड्यू डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैंने 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ की जगह 25th को GSTR 3 भी फाइल किया। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि जब मैं GSTR 3B की टैक्स की लायबिलिटी ऑफसेट करूंगा, तो जब मैं GSTR 3B 25th को फाइल करूंगा तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी भी ऑफसेट जो है वो 20th की बजाय 25th को ऑफसेट होगी। तो डिपार्टमेंट को ये कहना था कि इंस्पाइट ऑफ आपके ITC कैश लेजर ITC क्रेडिट लेजर में एप्रोप्रिएट आपका बैलेंस अवेलेबल है, क्योंकि आपने ऑफसेट जो लायबिलिटी है वो 5 डेज डिले से की है, देयरफॉर आपके ऊपर में जो टोटल ग्रॉस लायबिलिटी टैक्स है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सेक्शन 50 में आपको पे करना है। तो यहां हम ये एग्जामिन करना कि एज ऑन डेट क्या पोजीशन है इसकी, whether interest on delay payment of tax declared in belated return should be computed on total tax, that is before adjustment of input tax credit, before set off, or net cash liability, that is the amount payable through the electronic cash ledger. फर्स्ट जो डिस्प्यूट था इसका मेगा इंजीनियरिंग के केस में आया था, इन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड अदर 2019 VIL 175 TEL। यहाँ तेलंगाना ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि interest has to be paid on account of delay in filing the GSTR 3B return on the cash and ITC component of the tax paid after the due date. That is, the interest has to be paid on the gross liability. Another matter Honorable Madras High Court के सामने आया था, Reflex Industries Limited versus Assistant Commissioner of CGST, writ petition number 23360 and 23361 dated 6/1/2020.
यहाँ रेफेक्स इंडस्ट्रीज में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कैटेगरली ये हेल्ड किया कि interest under section 50 is applicable only in case where the outward tax liability is paid in cash and not by way of ITC, since there is no deprival of to the department in case of payment of output tax by way of ITC. यहाँ एसएससी का सिंपल जो सबमिशन था वो ये था कि साहब मेरा आईटीसी बैलेंस तो क्लाउड जीएसटीएन पे ही अवेलेबल है, मैंने 1 रुपए का भी कोई यूटिलाइज नहीं किया, देयरफॉर कि जो मैंने कैश का जो अगर डिले से पेमेंट किया तो मुझे वही अलाउ किया जाए कि मैं जो इंटरेस्ट पे करूं वो उसी कंपोनेंट पे ऊपर पे करूं जो मैंने कंपोनेंट आईटीसी कैश लेजर से पेमेंट किया। ये मैटर जो है ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल की 39th मीटिंग जो आपकी 14 मार्च 2020 को जो हेल्ड हुई थी उसमें उस काउंसिल ने रिकमेंडेड किया है कि इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी ऑन द नेट कैश लायबिलिटी with retrospective effect from July 1st, 2017. Amendment is awaited till date. So after coming the amendment, ये जितने भी notices जो सर्व हुए हैं, only in case of cash liability, अगर किसी का डिफॉल्ट है उस कैश लाइबिलिटी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, अदरवाइज जितना भी आपने डिले का अगर पेमेंट कोई भी आईटीसी को यूटिलाइज करके किया है उस कंपोनेंट्स पे आपको कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस अमेंडेड विल बी नोटिफाइड। अनदर इश्यूज, very interesting issue, whether notice period recovery by the employer from the employee is liable for the GST. हम ये रेफर करेंगे शेड्यूल सेकंड का सीरियल नंबर 5E जो ये कहता है कि agreeing to the obligation to refrain from the act or to tolerate an act or situation or to do an act has been specifically stated to be treated as service in this. So according to schedule 2 serial number 5E, आपने रिफ्रेन टू एक्ट, किसी भी एम्प्लॉय को एक्ट करने से लिया, अगर उससे आपने नोटिस पीरियड आपने रिकवर किया, आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, ऐसा इंटरप्रिटेशन शेड्यूल सेकंड से आता है। अल्टरनेट व्यू अगर हम ये देखें कि इसके ऊपर लाइबिलिटी क्यों नहीं आ सकती, सिमिलर प्रोविजन अगर हम इंटरेस्टिंगली देखें तो यूके का जो वेट लॉ है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन वहां पर ये इसी तरीके का है, and which is very close to our GST law, does not levy tax on termination of contract subject to condition that contract originally contained a clause allowing the party to terminate early in lieu of compensation for losses arising from the termination. So UK VAT में अगर आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन्ड है क्लियरली, कोई जीएसटी पे नहीं होगी यूके में। नाउ हम एग्जामिन करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में अल्टरनेट व्यू जो सर्विस टैक्स में अभी वेरी रिसेंटली में ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट रिपोर्ट हुआ है। अल्टरनेट व्यू में नो सप्लाई ऑफ एनी सर्विस टू द एम्प्लॉइज, ये दोनों जजमेंट सर्विस टैक्स रिज्यूम के हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन द जीएसटी लॉ। GETED लिमिटेड इंडिया लिमिटेड रिट पिटीशन नंबर 35728 ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट प्रोनाउंस ऑन द 7th November 2019. Another judgment, SCL Learning Limited, Service Tax Appeal 7058 dated 25/11/2019. इन दोनों जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने फर्स्ट जजमेंट में कैटेगरीली हेल्ड किया कि कोई भी नोटिस पीरियड जो एम्प्लॉयर पे करता है या एम्प्लॉय पे करता है एम्प्लॉयर को, उसके ऊपर में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो कोई भी नोटिस पीरियड रिकवरी है अगर एम्प्लॉय से, उसके ऊपर में एम्प्लॉयर को कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों ही व्यू हैं। एज ए ऑडिटर हमको एग्जामिन करना है कि अगर ऑडिटी ने फर्स्ट व्यू के अकॉर्डिंगली शेड्यूल 2 सीरियल नंबर 5E में डिस्चार्ज कर दी लाइबिलिटी, वेल एंड गुड। अदरवाइज हमको ये चीज जो है आपको ऑडिट रिपोर्ट में जो एज ए ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी पड़ेगी। Another very important issue, reconciliation between 2A. This is a very, very important point and I require all of you attention. Kindly pay the attention for this point because to understand the ITC, this is a very, very important point. Reconciliation between the GSTR 2A and ITC receivable on account of number 1, mismatch in invoice number. During the course of audit for the financial year 2017-18, हम लोग वेरियस सिचुएशन से जब हमने
GSTR 3B की परचेज यानी कि इनवर्ड सप्लाई और GSTR 2A की इनवर्ड सप्लाई का जब रिकंसिलेशन किया, तो हम ड्यूरिंग द रिकंसिलेशन हमारे पास में जो मिसमैचेस आए वो इस काइंड के जो है, इस टाइप के जो मिसमैचेस थे, मिसमैच इन नंबर ऑफ इनवॉइस नंबर, wrong tax head in GST, wrong GSTN number, invoices not uploaded by the supplier, ITC as per GSTR2A is more than the GSTR ITC availed in the books, detected after September or subsequently year. Supplier paid the GST through their GSTR 3B and GSTR 1 but shown such supply as a B2C supply. So ऐसी सारी सिचुएशन अगर आज हमारे सामने आती है, अगर जीएसटी आपका जीएसटी ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये सारे मिसमैच है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि GSTR since the GSTR 1A, GSTR 3 and mismatch report is not incorporated, provision of section 31 and 41 as such ineffective, and hence ITC may be allowed even on any reasonable mismatch, reason of mismatch. However, as a auditor, we have to make a suitable note for the safeguarding to interest of the auditor to be made in the observation sheet कि भाई ऑडिटी ने सो एंड सो मिसमैच के अकॉर्डिंगली ये सारे मिसमैच जर्नल जो है वो नोटेड है, बट बाय कंप्लाइंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वो सारी की सारी कंडीशन कंप्लाई की है और ऑडिटी ने ये सारी की सारी आईटी से अवेल्ड किया है। बट ये जो सारे मिसमैचेस का एक ऑब्जर्वेशन एज ए ऑडिटर हम लोग जो है ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड प्रीवियस स्लाइड से ही है कि क्या GSTR 2A और GSTR 3B की इनवर्ड सप्लाई का रिकंसिलेशन कंपलसरी है और क्या सिग्निफिकेंस है इस रिकंसिलेशन की फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ 2018 फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। इस चीज को एग्जामिन करने के लिए हम लिम्स देखेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो सेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट, फर्स्ट कंडीशन जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की है, ही इज पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट, अगर आप ITC क्लेम कर रहे हैं, आपके पास में वैलिड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए। नंबर 2, रिसीव्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, you have to receive the goods and services. Third is payment of tax charge in respect of such supply to credit of the government through cash or utilization of ITC by the supplier. अब अर्लियर रिजिम आपका अर्लियर जो GST में जो प्रेस्क्राइब्ड आपके रिटर्न्स थे GSTR 2 और GSTR 3 जो अभी डेफर्ड है, ये दोनों फॉर्म जो आपके रिटर्न्स है। अब यहाँ क्या है कि अगर वो GSTR 2 और GSTR 3 कंटिन्यू होते तो ये आपके सामने जो थर्ड कंडीशन है ये कंप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती। वहां मैचिंग कंसेप्ट था। यहां इस एलोन पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे आप देखिएगा कमिंग टाइम में वेरियस लिटिगेशन अराइज होंगे डिपार्टमेंट साइड से, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर ऑडिटी कि ये प्रूव करना। टेकिंग एग्जांपल, मेरे इनवर्ड सप्लायर जो है वो 1000 है। हर एक सप्लायर का मुझे ये कंप्लायंस देखना है पॉइंट नंबर 3 में कि पेमेंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई टू क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। मीनिंग दे रहा भाई कि जो मैंने गुड्स की वैल्यू और जो GST का पेमेंट मेरे सप्लायर को कर दिया है, उस GST का जो पेमेंट है उस सप्लायर ने गवर्नमेंट को कर दिया या नहीं कर दिया, ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है फॉर टेकिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ माई ITC। सो ये वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आप आइदर हर सप्लायर से आप ये सर्टिफिकेट लें कि सब उसने अप्रोप्रिएट जो भी GST कलेक्ट किया है उसका उसने जो है GST अप्रोप्रिएटली डिस्चार्ज कर दिया। आप कोई चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लें, आप उनसे पेमेंट के चलान लें। सो कंप्लायंस ऑफ दिस पॉइंट नंबर 3 इज वेरी seems to be very difficult. Point number 4 is the recipient furnish the return under section 39 of CGST Act। यानी फोर्थ कंडीशन क्या है कि मैंने इनवर्ड टैक्स का जो भी क्रेडिट लिया है, मैंने अपने जो भी रिटर्न्स है GSTR 3B और GSTR 1 वो फर्निश कर दिया। अब इन 4 कंडीशन के अलावा अगर हम ये देखें
ऐसी कोई कंडीशन है कि जीएसटीआर 2A से आपकी एंट्री मैच होनी चाहिए एज फार एज कंसर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। यहां आप देखेंगे नोटिफिकेशन 49/2019 सेंट्रल टैक्स, जहां पर डेटेड 9 अक्टूबर 2019, यहां पर एक नोटिफिकेशन के थ्रू रूल 36 आपका एक इंसर्ट किया उन्होंने। रूल 36 जो है वहां इंसर्ट करके रूल 36 सब रूल 4 को इन्होंने इंसर्ट करके ये रेस्ट्रिक्ट किया कि आप जो भी आईटीसी आपकी रिफ्लेक्टेड हो रही है जीएसटीआर 2A में, उसका 120% तक एलिजिबल आईटीसी का, उसमें इंपोर्ट वगैरह नहीं होगी, जो भी फॉरवर्ड चार्ज में आपकी आईटीसी आ रही है एलिजिबल आईटीसी का आप 120% तक आप क्रेडिट ले सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019। सो 2A का जो रिकंसिलेशन आपको करना है वो करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019, और 75/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 26 दिसंबर 2019 इस 20% की सीलिंग को उन्होंने 10% कर। So as far as concerned for the financial year 2018-19, according to my opinion, आपका जो रिकंसिलेशन है जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A, वो एक एक्सरसाइज है फॉर रिकॉर्ड पर्पस। अदरवाइज आप यह देखिए कि 4 जो लिम्स हैं जो मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फॉर अवेलिंग द आईटीसी, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुझे जीएसटीआर 2A के साथ में मुझे आईटीसी मैच करनी है। ओनली मुझे जो इंश्योर करना है वो थर्ड पॉइंट को करना है कि जो टैक्स और जीएसटी मेरे सप्लायर ने कलेक्ट किया है उसका एप्रोप्रिएट पेमेंट उसने गवर्नमेंट को टू आईटीसी और कैश में उसने कर दिया या नहीं कर दिया। अगर ये कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन या लीगली इसकी कोई वैलिडिटी नहीं। आप ऑप्शनली और पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी गवर्नेंस और सारा देखने के लिए कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, फॉर दी कंसर्न ऑफ 2018-19 आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और 9 अक्टूबर 2019 से ये मैंडेटरी है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशंस। यहां इस पॉइंट को कंक्लूड करने से पहले मैं एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आपको बताना चाहूंगा। ऑल्दो ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है इन केस ऑफ एराइज इंडिया लिमिटेड and others versus Commissioner of Trade and Taxes, इस डिसीजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑल्दो ये जजमेंट वैट से रिलेटेड है लेकिन इक्वल एप्लीकेबल ये जीएसटी में अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन। यहां उन्होंने क्या बोला कि साहब अगर आपने वैट का पेमेंट अपने सप्लायर को कर दिया दैट क्वाइट एनफ। अब डिपार्टमेंट वंस अगेन आपसे बोले कि उसी टैक्स को आप दोबारा पे कीजिए, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, नाउ सप्लायर की ड्यूटी है कि वो उस टैक्स का गवर्नमेंट को पेमेंट करे और गवर्नमेंट उससे कलेक्ट करे वो टैक्स। देयरफॉर डिफॉल्ट ऑफ सप्लायर कैन नॉट, यू आर नॉट ए रिसिपिएंट पेनलाइज फॉर डिफॉल्ट ऑफ द सप्लायर। देयरफॉर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट गिविंग ए वेरी good landmark judgment in case of Arise India Limited. Similar view expressed by the Jharkhand High Court in case of Tarapur and Company versus State of Jharkhand. ITC cannot be denied for default of the seller or dealer. Coming to the next issue, if company follow a suitable provisionary norms for writing down the value of inventories towards slow moving, non-moving and surplus inventory, however, this amount is only a provision under compliance for Ind AS 102 for write down the value of inventory at NRV, whether GST will be leviable or not. यहाँ इस प्रॉब्लम को हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि टेकिंग ए करंट सिचुएशन कि कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कोई भी इन्वेंट्री AS2 के अकॉर्डिंगली जो ये प्रेस्क्राइब करती कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आपको इन्वेंट्री आपको वैल्यू करनी। तो 31 मार्च को मैंने कोई भी इन्वेंट्री को NRV पे वैल्यू किया। अब उस NRV और कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसका मैंने मेरी इन्वेंट्री में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन कर दिया। ओनली प्रोविजन ओनली इन वैल्यू। इन्वेंट्री एज ऑन डेट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिजिकली मैं उस इन्वेंट्री को कभी भी इस मोड में हूं कि कभी भी मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो हम यहाँ पर रेफर करेंगे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5
Clause H of CGST Act, ITC shall not be available in respect of the following, namely, goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift or free sample. So यहाँ हम देखेंगे वर्ड आया है रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ अगर मैं पूरी की पूरी इन्वेंटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटर्न ऑफ कर देता क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, यहां मैंने क्या किया, एनआरवी पे ओनली वैल्यू का प्रोविजन किया. So since there is a partial return of in value of inventory only, therefore no ITC reversal is required. So according to my opinion, there is no need for reversal of ITC अगर आपने कोई भी वैल्यू का ओनली आपने प्रोविजनिंग की है आपकी इन्वेंट्री वैल्यू. Another issue is the ITC on CSR activity done when it shows as a business expenditure. अभी जैसे हम देखेंगे कि कोविड-19 के बाद में वेरियस कंपनीज को जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, सीएसआर एक्टिविटीज में एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ किया. अब यह क्वेश्चन आता है, वेरियस क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि साहब ये एज ए सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होंगे या नहीं होंगे अगर हम कोई चीज या हम हमारा स्टॉक की कोई भी कमोडिटी अगर डोनेट करें. या आप देखेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो टॉक अबाउट कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम व्हिच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यानी यहाँ जो वाइडनेस है, जो कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वो उतनी वाइड है जितनी की इनकम टैक्स का आप जो रेजिडुअल सेक्शन देखते हैं 37 सबसेक्शन 1 जो बिजनेस एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करता है और जो वाइडली उसको इंटरप्रेट किया गया है. और वाइडली जैसे जो रेजिडुअल जितने भी एक्सपेंडिचर है, जो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है और एनी एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 32 36 में आपके फॉल नहीं होते, वो सारे के सारे रेजिडुअल सेक्शन 37 में अलाउ होते हैं एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर. तो यहाँ ये बोलती है कि कोई भी अगर आपने एक्सपेंडिचर किया इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका क्रेडिट आपको आईटीसी मिलेगी. ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलती है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. यहां हम देखेंगे डबल एआर केरला की जो डबल एआर है जीएसटी में, पॉलीकैब वायर लिमिटेड, ये एआर जो है उसने डिनाई किया और हेल्ड किया कि एप्लीकेंट कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंसेस. सो दिस एआर इन फेवर ऑफ रेवेन्यू. यहां एक चीज मैं बहुत आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एआर के डिसीजन जो होते हैं वो केवल उस रेस्पेक्टिव एसएससी और रेस्पेक्टिव एसेसिंग ऑफिसर पर ही गवर्न होते हैं. अदर देन एसएससी और अदर देन दैट पर्टिकुलर जुडिक्शन असेसिंग ऑफिसर, ये एआर के जजमेंट बाकी किसी के ऊपर बाइंड नहीं होते. सो यह आपको वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सेकंड केस हम ले रहे हैं सर्विस टैक्स रिजिम का. ये केस है एसएल प्रोपेक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सीएसटी भिवंडी सिस्टेट, मुंबई का जजमेंट है. इस पर्टिकुलर जजमेंट में मुंबई सिस्टेट वाज हेल्ड दैट द इनपुट सर्विस क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर can be availed by the company which discharges CSR obligation. The tribunal held that the CSR can be considered as input service and be included within the definition of activity relating to business. And if in so doing a company image before corporate world is enhanced so as to increase its credit rating as found from the handbook of the CSR activities. So Companies Act 2013 में जो आपकी CSR activities जो गवर्न करती हैं, अकॉर्डिंगली जो है ऑनरेबल मुंबई सिस्टेट ने एसएससी के फेवर में ये डिसीजन दिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इश्यू, वैल्यू ऑफ फ्री गुड सप्लाई एमोर्टाइज व्हेन स्पेसिफिक क्लॉज एब्सेंट इन द परचेज ऑर्डर. यानी कि मैंने किसी से जॉब वर्क करवाया और मैंने कोई मोल्ड और डाई मेरे जॉब वर्कर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी. अब क्वेश्चन ये है कि वैल्यूएशन में जब वो मटेरियल मुझे रिटर्न होगा, सो जो कॉस्ट और वैल्यू ऑफ डाई टूल्स और मोल्ड्स है जो एफओसी बेसिस पे मैंने सप्लाइड की है, उसकी वैल्यू एमोर्टाइज की जाएगी या नहीं की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन. यह हम रिलाई करेंगे सीबीआईसी सर्कुलर 47/21/2018 जीएसटी dated 8th June 2018. This circular
prescribe the value of dice, tools, mold supplied on FOC free of cost need not be added in the value of the goods or supplied by the manufacturer. Considering the clarification in circular, every person needs to be clarify or specify in PO. आपको यहाँ देखना है कि ये PO में terms clearly mention होनी चाहिए. With the separate clause that dies, mold, tools will be supplied on FOC basis will not be added in the value of the supply. Another issue is the income from mutual fund, securities, यानी कि shares, etc. Whether proportionate ITC under Rule 42 is reversal is required or not. यहाँ first हम understand करेंगे explanation 2 sub rule B of Rule 45 of CGST Act. Rule 45 क्या prescribe करता है? The value of security shall be taken 1% of the sale value of such security. यानी रूल 45 ये प्रेस्क्राइब करता है कि जो 1% वैल्यू है सेल ऑफ शेयर वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर ट्रीट होगी फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42. यहाँ हम जो फॉर्मूला 42 का जो कि वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हम उसमें नहीं जाके लेवेन में अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय माय कॉमन आईटीसी. जब मैं रिवर्सल करूंगा रूल 42 में सारी आईटीसी हम नहीं लेंगे, ओनली कॉमन आईटीसी दोज पर्टेनिंग टू सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज फॉर म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज, वो कॉमन आईटीसी से मैं रिवर्सल करूंगा अंडर रूल 42. तो यहाँ 1% जो सेल वैल्यू है मेरे शेयर और म्यूचुअल फंड की वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर ट्रीट होगी और फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर ट्रीट होगी मेरी कॉमन आईटीसी से अंडर रूल 42 में मैं इसका रिवर्सल करूँ. सो यहां पर आपको रिवर्सल करना पड़ेगा अंडर रूल 42 में. अनदर इशू इज द आईटीसी ऑन सीएसआर एक्टिविटी. यहाँ क्या केस है कि सीएसआर एक्टिविटी आपने बिलो द लाइन ऑफ द प्रॉफिट है वहां पर शो कर रखी है, तो इस केस में आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है आपका उसके बाद में है, कोई एक्सपेंडिचर आपने एज ए क्लेम नहीं किया. अनदर इज एफओसी में 11 स्किप कर रहा हूं पॉइंट क्योंकि हमने इसको कवर किया है. Another is the whether anti-profiteering clause compliance. एज ए ऑडिटर मुझे मेरी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो एज सच देयर इज नो प्रोविजन इन जीएसटीआर 9C and therefore this aspect need not be looked into while finalizing the GSTR 9C. आप GSTR 9 की जब डिक्लेरेशन देखेंगे वहां वेरी क्लियरली जब एसएससी से डिक्लेरेशन लिया है वहां क्लियरली ये मैंने बोला वहां पर ये बोला है कि जीएसटीआर 9C का जो भी ऑर्डिनरी लेमैन में हम उसको समझेंगे एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज क्या है कि वट एवर बेनिफिट यू अराइव्ड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ जीएसटी और बाय अवेलिंग द आईटीसी, अगर इन दोनों चीजों में से आपको कोई भी बेनिफिट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रायर टू जीएसटी रिजिम मुझे 18% टैक्स ब्रैकेट में आईटीसी मिलती थी, आफ्टर जीएसटी मेरे को जो है वो 5% में मुझे आईटीसी मिल रही है, या वाइस वर्सा अगर ये सिचुएशन है जो बेनिफिशियल है मेरे लिए, या मेरी टैक्स रेट जो भी आउटवर्ड कमोडिटी की थी वो पहले जो है वो मेरी कम थी अब ज्यादा हो गई है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, उस वे में मुझे अगर कोई भी बेनिफिट हुआ आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये सारा के सारा बेनिफिट आपको अल्टीमेट कस्टमर को पास ऑन करना चाहिए. ये एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज सेक्शन 171 ऑफ जीएसटी एक्ट आपका प्रेस्क्राइब करता है. अकॉर्डिंगली जो ये यहाँ पर हमारा लिमिटेड जो आपका व्यू है वो ये है कि यहाँ पर ऑडिटर को कुछ भी इसमें क्वालिफाई नहीं करना है. जीएसटीआर 9 में एसएससी को ये डिक्लेरेशन देनी है कि उसने अप्रोप्रिएटली इस क्लॉज का कंप्लायंस कर दिया. अनदर क्लॉज कि whether ITC is required to be reversed on impairment of asset made in the books of accounts. आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में कोई भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का कोई भी प्रोविजन अगर आपने किया है, यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या उस इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का जो आपने प्रोविजन किया है उसकी आईटीसी का कोई भी प्रोपोर्शनेट रिवर्सल सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H में रिक्वायर्ड है या नहीं है. आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ जो आपका 17(5)H जो क्लॉज है वो बोलता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, वो केवल वहीं तक कवर है. एंड इट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कीपिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो आपने वैल्यू में जो एसेट को इम्पेयरमेंट किया है उसका आईटीसी से कोई भी रिलेशन नहीं है. देयरफॉर नो आईटीसी
reversal is required. Another very important key issue, whether ITC is required to be reversed on reimbursement toward sharing of exempt supply, यानी कि during the course of supply आपने किसी को water, electricity अगर आपने supply की है, तो these are the exempt supply in the category. Therefore ये यहाँ पूछ रहा है कि भाई अगर ये exempt supply है तो रूल 42 में आपको रिवर्सल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये exempt supply की कैटेगरी में है. प्रोपोर्शनेट आईटीसी, जो भी कॉमन आईटीसी इस सर्विस से रिलेटेड होगी, वो आपको रूल 42 में रिवर्सल करनी पड़ेगी. Now, due to constraint of time, we'll take only these two scenarios and whether Yes, sir. appropriate. So we'll have to take questions also next. Okay, okay, sir. Yes, sir. So you can finish whatever the last one that you want to do. Okay, sir. So last issue is the whether apportionment of expenses to other entity, distinct entity, tax is payable or not. This is a very, very important and crucial issue. This issue arises in case of Columbia Asia Hospital Private Limited, advance ruling of Karnataka. यहाँ क्या था कि कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के अक्रॉस द इंडिया हॉस्पिटल्स थे, और जो इनकी कॉमन सर्विसेज होती है, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई, आईटी सर्विसेज हो गई, और कोई भी मार्केटिंग कॉस्ट हो गई. क्वेश्चन ये था कि वो जो कॉस्ट है वो डिस्टिंक्ट एंटिटी जो उसको रिसिपिएंट कर रही है उसको एलोकेट करनी है या नहीं करनी. सो कर्नाटका एडवांस रूलिंग में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल ने एडवांस रूलिंग सीख की. एडवांस रूलिंग ने अगेंस्ट दी कोलंबिया एशिया जज हॉस्पिटल के डिसीजन दिया कि आपको ये सारे के सारे जो चार्जेज है क्रॉस चार्ज में आपको एपोर्शन करने पड़ेंगे और चार्ज करने पड़ेंगे. यहाँ क्या डिसएडवांटेज था, चूंकि कोलंबिया एशिया हेल्थ सर्विस में आता है, उसकी जो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्टेड सर्विस है. देयरफॉर अगर कोलंबिया एशिया महाराष्ट्र का से अगर उसने कोई इनवॉइस अगर तमिलनाडु में रेज किया, तमिलनाडु वाली यूनिट को इसका कोई भी आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में है, तमिलनाडु जो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है. सो यहाँ क्या हो गया कि इस ऑर्डर को जो आपकी कर्नाटका एडवांस रूलिंग ने हेल्ड किया कि आपको क्रॉस चार्ज करना है. अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी डिसीजन जो है वो अपील्ड किया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का. एज ऑन डेट ये मैटर जो है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है. सो वी विल वेट टू द आउटकम ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट डिसीजन. अदरवाइज एज ऑडिटर हमको ये देखना है कि कोई भी ऐसे टाइप के कॉमन एक्सपेंसेस है जो डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि जीएसटी में क्या है कि जो कंसेप्ट है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, भले ही आप सेम पान नंबर पे है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड है अलग अलग स्टेट में तो आप यू आर ट्रीटिंग ए डिस्टिंक्ट टैक्सेबल पर्सन. और अगर इस तरह की कॉस्ट जो कॉमन कॉस्ट आप रिलेटिंग टू अदर एंटिटी के रिगार्डिंग अगर आप इनकट कर रहे हैं, टेकिंग एग्जांपल सीएफओ सैलरी, आईटी कॉस्ट, अब अक्रॉस द कंट्री अगर आपकी ब्रांचेज, मार्केटिंग ऑफिस और फैक्ट्रीज है तो ये सारी की सारी आईटी कॉस्ट अपोर्शन्ड होगी बाय वे ऑफ क्रॉस चार्ज. तो यहाँ एज ऑडिटर हमको ये ध्यान रखना है कि वो वेदर क्रॉस चार्ज किए नहीं किए. लास्ट पॉइंट आई जस्ट कंक्लूड विद इन 2 मिनट कि 100% अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रिटेंशन और डिपॉजिट. यहाँ क्या है कि जो हमने देखा रूल 37 तो ये बोलता है कि आपने कोई भी सप्लायर को जो पेमेंट है विद इन 180 डेज में आपने कर देना चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स एज वेल एज जीएसटी. यहाँ क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन मैंने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट कर ली किसी सप्लायर आपके कॉन्ट्रैक्टर. अगर सपोज कीजिए मैंने 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट कर ली तो मैंने 90% अमाउंट का पेमेंट कर दिया. अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो 10% आपने नॉन पेमेंट किया, डिपार्टमेंट में लिटिगेट द सेम और आपसे बोलेगा कि आपको आईटीसी 180 डेज में आपने इसका पेमेंट नहीं किया, देयरफॉर यू आर लायबल टू रिवर्स द आईटीसी विद कंप्लायंस ऑफ द रूल 37. सो यहाँ हमारा इंटरप्रिटेशन है कि अगर इस टाइप की कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको लेनी पड़े, आप सेपरेट चेक से लीजिए टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन अंडर रूल 37 बाय द डिपार्टमेंट. तो अर्पित जी, आई कंक्लूड माय सेशन हियर. Right, sir. So it was an amazing session. I think, you know, the way, the scope of coverage that we've done and the feedback and the questions that we've received
is just amazing. And while you are just compiling all the questions, we'll be putting that up for your review very soon. But yes, thank you for doing an explicit job and extensive coverage of everything that we've got here. Mishra ji, yes, so the questions are ready. I'll put it up for you, and then probably you can answer them. For GST audit, is there any difference between, if there is any difference between the GSTR 3B versus books? What and all the reason? How can we find the difference? I think you've ये covered जो this, sir. क्वेश्चन But maybe you want to put given a. आपका क्वेश्चन ये Mishra है, ji, थोड़ा zoom कीजिए. आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी टैक्स आपको पे करना है, एज ए थंब रूल आप समझ लीजिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपकी फाइनल है. आपको जो भी टैक्स डिटरमाइन करना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनल करना है. सो इन लाइन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको देखना है कि वेदर 3B में आपने और GSTR 1 में आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है नहीं दिखाई है. अगर कोई गैप है, आप उसको अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपकी टेबल है प्रेस्क्राइब्ड GSTR 9 की, उसमें शो करके और आप अप्रोप्रिएटली उसका टैक्स का पेमेंट करें. क्योंकि एज ए थंब रूल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी फाइनल और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स जो है वो डिटरमाइन करना है. आपको 3 लेयर में, आपके मैं क्वेश्चन के रिप्लाई पे आ रहा हूँ कि आपको GSTR 1 वर्सेज GSTR 3B वर्सेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर आउटवर्ड सप्लाई तीनों एक लाइन में अलाइन करनी और डिस्चार्ज द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी. Sir, for calculating aggregate turnover, do we have to include FD interest received? For include? For FD interest that we have received, should that be included for calculating aggregate turnover? No. Interest is outside the purview of GST. Only if you see the section 15, only delay payment का अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिलता है किसी भी कस्टमर से, वो ओनली आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा. और वो भी कब ऐड होगा? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट. एट द टाइम ऑफ रेजिंग डेबिट नोट वो ऐड नहीं होगा. ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट अगर कोई डिले पेमेंट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है कस्टमर से, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट आपकी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अर्पित जी. यहाँ वेरियस क्वेश्चन हमारे पास इस रेट में आते हैं कि साहब अगर ये कोई इंटरेस्ट है जो कस्टमर से डिले में मिला है, इस पे 18% रेट लगेगी या 5% लगेगी. सर मैं तो टेक्सटाइल का डीलर हूं, मैं तो 5% मेरी कमोडिटी है. यहाँ मैं आपको बहुत क्लियरली ये क्लैरिफाई करूंगा. यहाँ आप सेक्शन 15 अगर देखेंगे, वो क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट का जो भी इंटरेस्ट है उसको आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है. तो अगर आपकी 5% में, अगर आपकी सपोज कीजिए आप कमोडिटी फॉल हो रही है, 18% में फॉल हो रही है, एज एंड व्हेन वो जब वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा, एप्रोप्रिएट रेट से आपको उसका टैक्स जो है वो डिस्चार्ज करना. सर, I also recognize the presence of I recognize the presence of Manish Gadia sir, regional council member and also a GST. नमस्ते सर. सर जो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आया शैलेंद्र सर, ही इज आस्किंग कि फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में मैंने FD रखा है और उसका जो मुझे इंटरेस्ट आया है उसको मुझे टर्नओवर में इंक्लूड करना है क्या? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर को जो मिला है. नो नहीं सर, इंटरेस्ट जो है वैसे भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST है. इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे. ये वेरियस जगह सर क्लैरिफिकेशन दिया गया और वेरियस जगह एग्जामिन हुआ है कि इंटरेस्ट ऐड होगा नहीं होगा. बैंक इंटरेस्ट जो है वो परव्यू में नहीं आएगा. ओनली अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ओनली जो डिले इंटरेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रॉम द कस्टमर ओनली कोई ऐड होगा. वैसे गाड़िया सर आप खुद एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, हमको बहुत छोटे स्टूडेंट. So whether interest will not be included in exempt supply, if you see the notification 12/2017, which specifically exempt the interest on loans and deposit. So whether it will not be counted as exempt supply? Sir, accordingly not counted. Your view is welcome, sir. No, I have otherwise view. So We'll sir, go with your view because it is your session. Everyone is the student of GST in this stage, and you are also expert and my ideal. So if you share something, it is very welcome for me. Sir, according to me, if you go to the definition of services, it is very wide enough that something, anything which is not goods is a service. Yes. So anything below the sky or above the earth or whatever you call it will be counted as a service.
And worldwide also, if you see from various other countries, they listed this as a service, interest income as a service. So Yes. according to me, definitely this is a service, but since it is covered under exempt supply, Yes. so maybe calculated for calculating the aggregate turnover, but for interest for Rule 42, purpose of Rule 42, it will not be counted because a specific exclusion has been given in proviso Yeah, to 43. That is what view I am holding, but we will not discuss further. Very, So, very, very correctly Right. mentioned by you. Very correctly mentioned by you, sir. So let's go to the next question. Otherwise, we'll have our next round of panel discussion here. And no, you we know, will not I use actually great the view of the speaker is always supreme. We are just binding. discussing. Yeah, it is binding. No, but I think this is a fantastic fallout of today's session that, you know, we have a speaker, a fantastic speaker. We have a GST relevant speaker also, who's also nationwide speaker. So, you know, we could do actually a panel discussion like this, sir, in the next GoTo webinar. I mean, I'm saying in the next webinar, we can also organize a very good panel discussion with, you know, 2-3 faculties along. So anyway, sir, coming to the next question, as per notification 16 of 2020, dated 23rd March 20, the clarification is only regarding form GSTR 9C, but nothing about GSTR 9. So is the limit extended for filing form GSTR 9 to 5 crore, or is it 2 crore as it was before? You kindly refer the notification 15/2020. You 15, refer the okay. notification So I think it is there. 15/2020. Right, sir. Let's Got talk it. about the As there regulator. is, No, Arpit, let yes, sir. him Yes, complete. Manish bhai. Let him not finish. Okay, sorry. You jointly read the notification 15/2020 along with the notification 16/2020. You will get your answer. Sir, I Perfect, sir. request because it's a student Uh, program, so if you can answer also. Yeah. Shailendra. So यहाँ पर जो 5 करोड़ की लिमिट है वो दोनों GSTR 9 एज वेल एज GSTR 9C दोनों के लिए जो है वो 30 जून है, और जो 5 करोड़ की लिमिट जो डेट जो एक्सटेंड है वो दोनों के लिए है, और जो 5 करोड़ जो टर्नओवर है वो GSTR 9 एंड GSTR जो आपकी 9C है इनके लिए है। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऐसे एसएससी जो GSTR आपका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था आपका 2 करोड़ वाला, जहां ये मेंशन थी कि आपको GSTR 9 जो है वो 2 करोड़ तक को फेल करना है, जब आपने देखा होगा तो ऑडिट की जो लिमिट है आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज 5 करोड़ हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन GSTR 9 जो है आपको वो 2 करोड़ से ऊपर वाले एसएससी को फाइल करना कंपलसरी। Perfect, sir. So next question, what is the responsibility of statutory auditor with regards to GST? Because statutory auditors may not be well versed with GST laws, amendments, changes, circulars, notification, etc. I don't know, is that relevant to this session today? But it's a otherwise it's a very valid question. But sir, I think we can have an entire discussion on this. But as a statutory auditor, you know, one of the audit assurance standards says that, you know, we can always rely on the work of an expert. So we should always, just like we take expert of help in direct tax for income tax recognition of deferred tax assets and liabilities, we should also do this for GST also, I think. So we'll go to the next question. Yes. Right. If a client has reversed excess ITC of capital goods, and because of it, they are not reversing it monthly basis with interest as per Rule 43. So what the auditor should do, because read with rule says we have to reverse ITC proportionate to exempt supply every month along with interest. How to deal with it? So practical problem. यहाँ आपको एक ही चीज देखनी है कि जो रूल 43 का और रूल 42 का जो रिवर्सल होता है वो पर्टिकुलर जो आपका रिवर्सल है उस मंथ से रिलेटेड होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने पूरे आपका एग्रीगेट ईयर का टर्नओवर करके आपको कोई भी रिवर्सल करना है। टेकिंग एग्जांपल, सपोज कीजिए अगर आपका रिवर्सल अप्रैल 19 में है कैपिटल गुड्स का, तो जितने टर्नओवर और एग्जाम टर्नओवर है उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको होल ईयर का वो टर्नओवर कैलकुलेट करके और वो आपको करने का, और जहां जिस मंथ में आपको करने का था और जिस मंथ तक आपने रिवर्सल किया है, डेफिनेटली यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। Right. So next question is, if a company is providing CHA services and located in SEZ unit and providing services to domestic area,
the questions, there are two questions. We should raise the invoice in foreign currency for services provided outside India and raise invoice in INR for in India. एक सेकंड मिश्रा जी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो. हाँ. And second question is, if we have raised invoices in foreign currency and customer is paying in Indian rupees instead of foreign currency, then would there be any violation of GST Act or SCZ Act? Sir, I think people have taken advantage of this session to ask various other questions. Sir, I think what I request Arpit ji, these are the question is very voluminous because we have to go the provision of the SEZ Act, export provisions, as well as Rule 33 of pure agent, etc. Therefore, what I request you, the question directly to this session, you can ask or otherwise keep it, because my presentation is on a halfway only. I have completed half of my slide and various issues are pending. So what I request you to keep a separate session for these kind of query, because if I start the interpretation of that kind of query, it's require at least 15 minutes. It will be very difficult, yes. Manish bhai, you have any points, comments? It is not related to any GST audit, so we should not answer this query. Yes, all right. Next question is related to technical issue. Suppose entity purchased goods worth rupees 10 lakh plus GST in June. Entity has paid only 6 lakh within 6 months. So we need to reverse GST ITC proportionate to 4 lakh January GSTR 3B. Now the problem is that the client has paid balance amount in December. Yeah, but without going to in depth of the query, मैं जो general मेरा interpretation है इस query से regarding, अगर आपने कोई भी proportionate अगर ITC can be when the balance amount Yes, Shailendra ji, you can answer. Sir, you can answer. यहाँ मैं जनरल जो इंटरप्रेट विदाउट गोइंग टू इन डेप्थ ऑफ द क्वेरी, अगर आपने कोई भी सप्लायर को पार्ट लाइबिलिटी का अगर कोई पेमेंट कर दिया है और बैलेंस पार्ट का आपका 180 डेज की वजह से अगर रिवर्सल हो गया, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. जब भी आपने अगर इसका पेमेंट किया, यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट फॉर द बैलेंस अमाउंट. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अगर आपने 1 साल बाद लिया या 2 साल बाद लिया, जब भी आप उसका बैलेंस अमाउंट का या आपने जो रिवर्सल किया उसका आप रीपेमेंट करेंगे, यू आर एलिजिबल टू टेक रीक्रेडिट. And as far as provisions are concerned, sir, in case of recredit, 180 days where if you are reversing it, so you can take, there is no time limit, you can take after 2 years, 3 years also, whenever you make the payment. So there is no challenge. So nothing to do with 2A. Yeah, we'll take the next question. What is the time limit? What is the time limit for claiming refund for wrongly charged IGST instead of CGST, SGST? And pay the same? Sir, this query is also not related to the GST audit, so we'll skip this query. Yes, yes. So it is related to refund. So we'll restrict our query only to GST audit. Yes, sir. Next question. I think Arpit का network clear नहीं है. I think. अर्पित जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. क्या उसका network clear नहीं. Question number 11, sir, we will go. Sir, if I suppose, suppose I offset my liability before the due date, but forget to file 3B on due time, should I have to pay interest? So again, if you want to answer, sir, nothing to do with GST audit. So we'll skip this question. Yes. Sir, I have any notes on today's session? Which you have notes, so sir, you are going to share with us, Shailendra sir.
Yes, sir. Yeah, so Definitely. that will be hosted on the WRC website. You can take it later on. The rate of current month can't be set off. Credit of current month can't be set off, but we can claim credit having a credit ledger and on balance have to pay interest. So which is the question number, sir? The question number 13 is also not related to Full facts GST and audit. figures are there. Okay. Practical issue, I think. So it is a practical issue, but nothing to do with GST audit. I think question number 13 also we can escape. Question number 14 is also not related to GST audit. Basically, these all are related to interest and ITC, sir. Yes, sir. Litigation will come on 0.4. Mishra ji, नीचे के question देखो ना. Question number 18, sir, what should we do in case where Yes, the sir. amount of tax is reflected in GSTR 2A, but the same is not reflected in table number 8 in GSTR 9? Shailendra sir, this question number 18 is relevant. What would we do in case of the amount of tax is reflected in 2A, but same is not reflected in table number 8? In GSTR 9. For the financial year 17-18 एंड 18-19 अगर आपने देखा होगा कि ये फील्ड जो ऑप्शनल जो है आप अपलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 2A का डाटा. अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जीएसटीआर 2A का जो पीडीएफ फॉर्म में आप जो डाटा है वो अलग से अपलोड कर सकते हैं. सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 ये आपको रिलैक्सेशन. अगर ये अपीयर नहीं हो रहा है क्योंकि यही सारे ग्लिचेस थे जिसकी वजह से सारा कंप्लायंस पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो ये याद दिया है कि आपका अगर ये 2A का कोई भी डाटा है आप सेपरेटली इसको अपलोड कर सकते हैं, बट ड्यूली साइंड इन पीडीएफ फॉर्म. So 2019 is also on the similar line. 20 is again not related to GST audit. 21 is also not related to GST audit. और भी नीचे है क्या मिश्रा जी 21 के बाद में? I मिश्रा think जी, so we'll have to put an end here. Manish sir, you can take the next questions. Maybe we can send these questions to sir and maybe if we can answer. Because I think we are out of time now. It's already 1 o'clock and we have to prepare for the next webinar as well. yeah, sure, Mishra sure. ji, we can switch off as of now the questions. I think overall it's been a fantastic session with around 500 attendants today. So thank you all for participating. I'll request Manish Gadia sir to please present his closing remarks for the session and also give a hearty vote of thanks. Thank you very much, Arpit, for giving me this opportunity. Dear students, even in the lockdown, also, if you want, you can complete your GST audit because the data available, data required for GST audit is primarily your GSTR 3B and GSTR 1, which you can download from the website if you have a username or password, and balance sheet of 18, 19, which is also already signed and is available with you if you are same statutory auditor is doing the GST audit. So it is available. So most of the part can be completed. So you can still do that to avoid last minute rush, because the due date is 30th June and due date for February, March, April return also going to be 30th June. So it will be difficult at that point of time. And I thank Shailendra ji for sparing time, preparing the so many issues and deliberating that issues in great detail. Excellent session. And at the same time, I also thank Hitesh Pomal, Vikasa Chairman, WIRC Chairman Lalit Bajaj, and as well as Arpit Kabra for putting so much effort and organizing all this webinar and to be present throughout the day, coordinating with the faculties, coordinating with WRC staff. So hats off to the dedication of Arpit. Thank you. Thank you, Manish Over sir. to you, Arpit.
Arpit. Thank you, sir. Thanks a lot for a wonderful session. And please share the material with us and share it with the WIRC. We can host it on our. Okay. Sir, please share the data. Sir, can you hear me? Yes. Okay, Am sir. I audible? Yes, Hello. sir. Thank you, everyone. See you tomorrow for yet another exciting session on this. Thank you, Shailendra sir, and thank you, Manish sir, for your words. I'll request sir to please share your PPT with us. We'll host it on website for the advantage and benefit of all who have attended today. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Mishra ji. you. Thank you, Arora ji. Thank you, Subhash. Thank you, Vijay, for your support in organizing all of this. Also, please host the video, record the video, and host it on WRC website so that people can, if they want to go through the entire video again, they can go through with this. It will be helpful for all the students and participants who have attended today. Thank you, everyone, and see you tomorrow with yet another exciting session on understanding tax treaties. All the international tax treaties and how to take example of how to work around on the TDS on non-residents will be a great exercise tomorrow. So let's be ready to understand tax treaties tomorrow. Thank you.